जियो। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच। नानक होसी भी सच। कवन सु अखर कवन गुण कवन सो मनिया मंत। कवन सो वेसो हों करी जित वस आवे कंत। निवन सु अखर खवन गुण जेहबा मनिया मंत। एत्र पैने वेस कर तावस आवी कंत। दंडोत बंदन अनिक बार सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु डोलन ते राखो प्रभु। नानक दे कर हथ। परम सत्कार योग परम सम्मान योग चबर छतर तख्त दे मालिक जुगो जुग अटल साहिबे कमाल धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। तिन्हां दी पावन पवित्र हजूरी दे विच चल रही लड़ीवार जपजी साहिब दी विचार दे नाल जुड़न लई गुरुद्वारा धन धन गुरु हर राय साहिब जी संत विहार विखे जुड़ बैठे सतसंगी जनों आओ। सब तो पहला धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तिन्हां वल्लों बख्शिश इलाही फरमान दे नाल आपां रल मिल के सांझ पाइए जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। साध संगत जी कल तक आपां सुनिया दियां पौड़ियां दे नाल सांझ पाई सी और वो पौड़ियां दी संपूर्णता हुई सी कल तक। अज मन्निया दियां पौड़ियां दी शुरुआत हो रही है। सुनन ते मनन दा आपसी गहरा संबंध है। जितनी देर सुनिया नहीं जाएगा उतनी देर मन्निया नहीं जाएगा। महाराज दे
ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੜੀ ਜੁੜਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਸਕਿਪ ਕਰ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਉਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਾਲਾ ਬੜੇ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਣ ਮਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਮਾਲਾ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀਆਂ ਰੂਪੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੁੱਲ ਲਗਾਏ ਹਨ ਔਰ ਹਰ ਫੁੱਲ ਦਾ, ਹਰ ਪੌੜੀ ਦੀ ਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਫੜਾਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਇੱਕ ਉਸ ਨੀਂਹ ਤੇ ਉਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਘਰ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਸਾਡੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉਤਨੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸਾਰੇ ਹੋਏ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਉਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਆਈ ਸੀ, ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੇ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇੱਕ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਂਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਨੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਮਕਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਉਤਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਤਨੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਉਸ ਨੀਂਹ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਉਸ ਨੀਂਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਕਾਨ ਉਹ ਮੰਨਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਤਨਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੈ ਜਾਣਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਮੰਨਣਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਮੰਨੇ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਅੱਜ ਲਵਾਂਗੇ, ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਪੌੜੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਾਣਨਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਉਸ ਜਾਣੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਪਰਲਾ ਤਲ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਹੀਰੇ ਤੇ ਰਤਨ ਤੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਾਣਨਾ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਤਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰਨੀ ਤੇ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਰੇ ਤੇ ਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਡਾਕੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਜਾਣ ਤਾਂ ਲਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ,
हर एक जगह ते है, कण कण विच है, लेकिन उस कण कण विच वसदे परमात्मा नूं मनना यह है कि उस नूं परमात्मा दा रूप ही जानना, इहो ही उन्नू मनना है। जिस तरह असी बचन पढ़ते हैं भाई गुरदास जी का, देख पराइयां चंगियां मावां भैणां धीआं जाने, ये असी जानिया, लेकिन इनू असी मनना भी है कि वाकया ही ये मेरियां धीआं है, ये मेरियां भैणां है, ये मेरे बजुर्ग है, ये है उन्नू मनना। एक दूरों बाहरी तौर ते जान लेना, महाराज कहंदे नहीं, जेकर तू उन्नू जानिया है ते महाराज कहंदे हुण तू उन्नू मन भी कहंदे, अपने मन विच उन्नू दृढ़ भी कर। इहो ही इस पंक्ति का अज जिहड़ा पहली जिहड़ी अपनी पौड़ी है उहदा इहो ही है। दूसरी गल अगे चलीए, कुछ इंसान ऐसे कहते हैं कि मैं गुरु नानक दा जां गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा सिख हाँ, मेरी हथ जोड़ के बेनती है, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा सिंह वो हो सकता है जिहड़ी गल कह लगा जिन्हें खंडे बाटे दी पौहल लई है। हुण कोई कवे कि मैं केस भी कतल करा रहा हाँ ते मैं दस्तार भी सजा रहा हाँ ते चार बंदियां विच कवे कि मैं सिंह हाँ, माफ करना, उहदे वास्ते फिर रहतनामे दी एक पंक्ति है, धरे केस बिना पौहल भेखी मूड़ा सिख अखावे। धरे केस बिना पौहल, केस रखे सूरत है लेकिन खंडे बाटे दी पौहल नहीं लई। महाराज कहंदे आ ए तो महाराज अज तुसी दरबार साहब दा जे हुक्मनामा सुनिया होवे, अज दरबार साहब दा हुक्मनामा सी, पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, निवल भयंगम साधे, पंच जनास्यों संग ना छुटक्यो, अधिक अहम बुद्ध बादे। महाराज कहंदे तेरा पाठ कीता ते करके चौंक च रौला पाया, वो तेरा हंकार बन गया। कहंदे इसलिए एक बड़ा प्यारा बचन है, कहंदे जे कुछ तू कुछ प्राप्त कर लिया ना ते बाहर जाके रौला ना पार, रतन पदार्थ पाए के कबीरा गांठ ना खोल। रतन पदार्थ पाए के कबीरा गांठ ना खोल, कहते किसी दे अगे रौला ना पा। कहते सो ये रस्ता आप उधर भी गल की सी, ताइयों ते महाराज ने कहा यह रस्ता बड़ा बिखम रस्ता है, ये बड़ा बरीक रस्ता है। और जो अज दी पौड़ी है, आपां उस पौड़ी का पहला जिहड़ा मूल पाठ है उहदे नाल आपां सांझ पाइए। महाराज फरमाउंदे हन, मन्ने की गत कही न जाए। मैं तुहानू पहला ही थोड़ा जिहा दस दियां, तुसी ना तुहाडे कोल जिन्हां कोल गुटका साहब है, पहला अक्षर मन्ने आ गया। दूसरी पौड़ी देखो, दूसरी पौड़ी दे नन्ने दे उपर दो लावां लगियां दिखाई दे रही। दूजी पौड़ी जिहड़ी हैगी ओनू आपां मन्ने नहीं, ओ मन्ना है। इत्थे मन्ने इन्हां एक पौड़ी ते जिहड़ियां तीन पौड़ियां, इन्हां च अर्थां विच भी अंतर है जी। मैं तुहानू पहला दस दियां थोड़ा जिहा इन्हां च अंतर की है। पहली पौड़ी है जिन्हां ने मन लिया है, ठीक है जी, पहली पौड़ी जिन्हां ने मन लिया है। दूजी पौड़ी है जिन्हां नू उपदेश हो रहा, जे तू मन्नेगा ते तेनू आ मिलेगा। इहदा मतलब हले मन्निया नहीं है। एक पहली पौड़ी मन्नण वालियां दी है, बाकी दियां तीन पौड़ियां जिहड़ियां ये उन्हां दियां हन जिन्हां नू उपदेश कर रहा, जे तू मन्नेगा ते आ कुछ तेनू मिलेगा। बस आ समझ लो, पहली पौड़ी उन्हां वास्ते इसे लई पहली पौड़ी ते मन्ने दे उपर एक लां है, दूजी पौड़ी ते तीजी पौड़ी ते चौथी पौड़ी ते नन्ने दे उपर दो लावां नाल शुरू हो रहा मन्नै। इत्थे है मन्ने जिन्हां ने मन लिया, जो अर्थ किते मैं आप जी दे सामने ओही रख रहा। चलो महाराज फरमाउंदे इस पौड़ी दे विच, मन्ने की गत कही न जाए,
ना माड़ा जिहा बोला ना पिछे दे किदां नहीं हैगा। मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कह हाहे ते दो लावा, जे को कह पिछे पछताए, शशे ते भी दो लावा लगियां, पिछे पछताए। कागद कलम ना लिखन हार, मन्ने का बह करन विचार। विचार क्योंकि वावे नूं लगी हुई है बिहारी, जे सिहारी होवे ते फिर असीं हल्का जिहा मूँह चों कढदे हां विचार, इत्थे लगी हुई है बिहारी विचार। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। दोवां मनां दे विच फर्क है साध संगत जी। पहले मन दे उपर टिप्पी लगी हुई है, दूसरे मन दे उपर टिप्पी नहीं हैगी। पहले मन दे उपर टिप्पी दा मतलब है जिन्हें मन लिया है, ते दूसरे मन दा मतलब है मन दे विच। देखो एक टिप्पी ने अर्थ वखरे वखरे करते। जे को मन जाना है, जदों असी पहला बोलना उदों असी मन थोड़ा जिहा जोर देना है मम्मे दे उपर, मन दे के बोलना है। ते जेड़ा दूसरा है उन्होंने असी हल्का जिहा मूँह चों बाहर कढ देना, मन कोई। बस आ इस तरीके दे नाल जदों तुसीं बाणी पढ़ोगे अर्थ अपने आप उहदे वखरे वखरे हो जाणगे। जे को मन जाने मन कोई। फिर दोबारा मैं उही पंक्ति आखिरी आप लेनी है। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। बस थोड़ा जिहा इस चीज नूं जेहन च रखना कि पहले मन ते जोर देना है, दूजा मन हल्का जिहा मूँह चों कढ देना बिना टिप्पी तो। महाराज इस पौड़ी दे विच सानू मन्नण दी गल करदे आ। सब तो पहला गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज चो असी मन्नण दीआं गल्लां करिए। पहली गल, असी घरां दे विच नौकर रखदे आ, उस नौकर नूं असी तनख्वाह दिंदे आ। जेकर वो नौकर अपने मालक दा हुक्म मन्नेगा, मालक ओदे उपर खुश होवेगा, मालक ओदी इज्जत करेगा। ते कई बार मालक खुशी विच आके जिन्नी ओदी तनख्वाह है ओदे तो उन्नू थोड़े बहुते ज्यादा पैसे दे देवेगा। चाकर लगे चाकरी, चले खसमे पाए। खसमे दा आखरी अर्थ है मालक। पाए मैंने ओदे हुक्म दे विच। हुरमत तिसनो अगली, हुरमत दा आखरी अर्थ है इज्जत। हुरमत तिसनो अगली, ओ वजो, वजो मैंने वजीफा जेड़ी ओदी तनख्वाह दिने आपां, ओ वजो भी दूना खाए। ओदी मालक ओदी तनख्वाह दे विच वाधा कर दिंदा, उन्हूं इज्जत भी दिंदा ते उन्हूं होर पैसे भी दिंदा, जेड़ा नौकर अपने मालक दे हुक्म दे विच चलदा। ठीक है जी, हुक्म मन्नण दी गल। चाकर लगे चाकरी, चले खसमे पाए, हुरमत तिसनो अगली, वजो पी दूना खाई। फिर अगे आ महाराज कहते जे चाकर अपने खसम दी बराबरी करे, मेरी गल समझ गए, बराबरी करे ओदे बराबर। देखो नौकर तां नौकर ही है। हुण असी होर अगे चलीए, साडा मालक परिपूर्ण परमात्मा, असी ओदे नौकर हां, असी ओदे की हां नौकर है। इनू इदां लैके चलो फिर बड़ा वधिया लगेगा, फिर अर्थ सारे क्लीयर होंगे। महाराज कहते चाकर करे बराबरी, फिर गैरत अंदर पाए। फिर गैरत मैंने बेइज्जत होवेगा, शर्मिंदा होवेगा। फिर वजो गवाए अपना, मुहे मुंह पाना खाए।
ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਆਪਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਵਜ਼ੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹੇ ਮੂੰਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ। ਮੂੰਹੇ ਮੂੰਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਣਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜੁੱਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮਾਲਕ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿन्ने भी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बराबरी की है ना, सिखां ने उन्होंने नहीं छड्डिया। एक उदाहरण, मैं ना आस्ट्रेलिया जाना हुन्ना वियना, आ 2 साल हो गए हुण नहीं जा सकिया ड्यू टू करोना करके, नहीं तो 1 साल का मेरा चक्कर पक्का उत्थे हैगा। उत्थे सिंह अज भी जेल दे विच बंद हन। तुहानूं याद होवे अज तो कुछ साल पहला एक अपने आप को अखौती संत कहाउंदा सीगा ते गुरु ग्रंथ साहब दे बराबर उन्हें गद्दी लाई, ते जिहड़ा रुमाला गुरु ग्रंथ साहब नूं चाढ़ना सी पहला उहदे गूठे नूं लग के फेर चढ़दा सीगा, ते फिर ਸਿੰਘਾਂ ने उहनूं उत्थे सोधिया वियाना च। उत्थे ਸਿੰਘਾਂ ने सोधिया उहनूं, ठीक है वो जेल च है, कोई गल नहीं, उन्होंने परिवार की उत्थे दे जिहड़े सिंह हैगे पूरा उन्होंने परिवार का ख्याल कर रहे हैं, रोटी पानी लंगर भेज रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं, पर गुरु ग्रंथ साहब की बराबरी तो नहीं ना फिर सिख जानी कि सहन कर सकता। ये है मूहे मूँह पाना खाए। अगे चलीए आपां, चलो मैं दस ही देना, आ बल्लां वालियां दा सीगा, बल्लां वालियां दा चेला सीगा छोटा, उन्होंने फिर अगे चलीए। गल हुक्म मनण दी। गुरु रामदास जी महाराज दे कोल ना, गुरु रामदास जी महाराज दे 3 साहिबजादे, वड्डे बाबा महादेव, दूसरे नंबर ते बाबा प्रिथी चंद, ते तीसरे नंबर ते धन धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज। ये आप जी नूं पता गुरु रामदास जी दे साहिबजादे। गुरु रामदास जी महाराज दे कोल उन्हां दे ना भरा आया, ताए दा पुत्र सिहारी मल लाहौर तो, ते आके उन्होंने कहा, आपां गल कर रहे हैं हुक्म मनण दी, मन्ने की गत कही ना जाए। जिन्ने गुरु दी गल मन लई है ओदी अवस्था नूं कोई बयान नहीं कर सकता। गत मैंने अवस्था, मन्ने की गत कही ना जाए। ते सिहारी मल जी आए, सिहारी मल जी ने आके गुरु रामदास जी नूं बेनती की, कहंदे गुरु साहिब आप दे भतीजे दी शादी है, ते आप जी नूं बेनती है कि आप जी लाहौर चलो। ते गुरु रामदास जी ने कहा भी अमृतसर दी धरती ते गुरुद्वारा साहिब दा होर इत्थे काम चल रहे हैं, ते मैं ते नहीं जा सकदा सिहारी मल। दूसरी गल, जे मैं चला गया तो मेरे पिछे फिर संगत भी बहुत जानी है, तो फिर उत्थे तेरे वास्ते एडे वड्डे प्रबंध नूं सांभना मुश्किल हो जाएगा। तू इस तरह कर कि मैं अपने पुत्रां चों किसे नूं भेज दिना। ते उन्होंने कहा जी सिहारी मल जी ने, कहंदे चंगा होवे जे तुसी नहीं आ सकते ते 3 पुत्रां नूं कहंदे भेज दो। कहंदे चलो 3 पुत्रां नूं ते नहीं, मैं एक नूं भेज देना। सब तो पहला बाबा महादेव की वारी आई। महादेव नूं गुरु रामदास जी ने बुलाया, पुत्र तेरे ताए दे घर शादी है, तेरे भरा दी शादी है, ते तू पुत्र उत्थे जा। बाबा महादेव ने जवाब दिता, कहंदे गुरु साहिब पिता गुरु जी तुहानू ते पता कि मैं दीन दुनिया तो की लेना। बाबा महादेव जी ऐसे सीगे, उन्होंने किसे भरा ना कोई किसे रिश्तेदार नाल आउंदे सी, गुरुद्वारे बाणी सुनते सी ते अपने मस्त बस। ये सी बाबा महादेव दा जीवन। कहंदे पिता गुरु तुहानू ते पता कि मैं रिश्तेदारियां तो की लेना, मैं नहीं जाना। कहंदे वारी आई प्रिथी चंद दी, पुत्र तू चला जा। हुण प्रिथी चंद दे अंदर सीगा कपट के जे मैं चला गया ते किते गुरता गद्दी गुरु अर्जन नूं ना छोटे भरा नूं मिल जे। वो कहंदा बापू तुहानू ते पता कि अमृतसर दा सारा प्रबंध जिहड़ा वो मैं सांभदा, गुरु घर दा प्रबंध मैं सांभदा। जे मैं चला गया ते गुरु घर नूं ताले लग जाने हैं। साडे भी सिख कुछ ऐसे हैगे है कि मेरे तो बगैर ते गुरु घर चल ही नहीं सकता। जे मैं ना होवां ते गुरु घर नूं ताला लग जाना। माफ करना, ये गुरु दा अपना घर है। इच गुरु आप वरत रहा, इच 10 पातशाहियां दी जोत आप वरत रही है, ते उन्हां नूं सारा पता है कि इसका निजाम आपां
ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਖੈਰ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਰੀ ਆਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ। ਪੁੱਤਰ ਅਰਜੁਨ, ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਨ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ, ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ, ਹੁਰਮਤ ਤਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ, ਉਹ ਵਜੋ ਵੀ ਦੂਣਾ ਖਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਾਨ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਉਹ ਪੁੱਤ ਗੱਲ ਇਹ ਸੁਣੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤੂੰ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਤੇ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਦਰਅਸਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। 7 ਬਚਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਹਲੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਨੰਦ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਾਰਾ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੰਪੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਹਬਲਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ, ਇਹ ਮੈਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਬਲਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਬਿਹਬਲਤਾ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਬਲਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਥੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੱਤਰਕਾ ਕੀ ਲਿਖੀ? ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ 3 ਪੱਤਰਕਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਥੋਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੇ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ, ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤਰੀ ਕੀ ਨਿਆਈ, ਤ੍ਰਿਖਾ ਨਾ ਉਤਰੇ ਸਾਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਤੇ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ 40 ਕੁ ਦਿਨ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੋਰ ਜੀ, ਚਲੋ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ। 6 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਬਣੇ ਕਿ 6 ਵਜੇ, ਪੌਣੇ 6 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਪਏ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜ। ਹਰ ਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ।
शुरू तो करिए आपां, शुरू तो करिए आपां, एक कदम तो चलीए, फिर गुरु बख्शिश कर दो तो फिर करोड़ां कदम तुहानूं अगों हो के लवेगा, तुहानूं नहीं सानूं सारिआं नूं लवेगा। खैर उत्थे फिर तड़ा पैदा हुई, मेरा मन लोचे गुरदर्शन ताई, बिलप करे चातरी की न्याई, त्रिखा न उतरे सांत ना आवे, बिन दर्शन संत प्यारे जियो। बाबा प्रिथी चंद कोल ये पत्रिका पहुंची, उन्हें राह च रख ली, बापू तक नहीं जान दी, गुरु तक नहीं जान दी। दूसरी पत्रिका लिखी, तेरा मुख सुहावा जियो, सहज तुन बाणी, चिर होवा देखे सारंग पानी, तनसु देश जहां तू वसिया, मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो। ये भी पत्रिका प्रिथी चंद के हाथ में आई, उन्हें भी रख ली राज, गुरु साहब को नहीं जान दी। तीसरी पत्रिका उन्होंने फिर भेजी, जदों तीसरी पत्रिका भेजी है ना, वो भी रख ली, माफ करना, दो पत्रिका भेजियां, तीसरी पत्रिका ते फिर गुरु अर्जन देव जी ने जिहदे हथ पत्रिका भेजी उन्होंने पूछया, कहंदे भले मानसा जड़ियां पहला मैं दो पत्रिका भेजियां वो कित्थे गईयां, कि गुरु साहब तक पहुंचियां नहीं? कहंदा मैनू नहीं पता, मैं ते जदों गया ते मैनू ते कहंदा प्रिथी चंद मिलिया ते मैं उन्नू फड़ा दित्तियां। ते कहंदे हुण आ तीसरी पत्रिका जिहड़ी है ना, ये कहंदे तू रस्ते विच नहीं फड़ाउणी, कहंदे ए तू रस्ते फड़ाउणी, ए तू गुरु साहिब नू, पिता गुरु नू तेनू इंतजार करना पवे, 2 दिन बहना पवे, तू पत्रिका नहीं देनी, तू ए जिहड़ी पत्रिका तीसरी ए पिता गुरु नू ही फड़ाउणी है। उन्होंने फिर पिता गुरु नू तीसरी जिहड़ी पत्रिका सी ना वो फड़ाई। जदों वो गुरु साहिब जी ने पत्रिका पढ़ी ते उन्होंने अंदाजा हो गया भी इहदे तो पहला 2 पत्रिकावां आ चुकियां मैं। फिर उन्होंने प्रिथी चंद नू बुलाया, वो कित्थे है? प्रिथी चंद ने कढ़ के दित्तियां, कहंदे आ पिता गुरु मेरे कोल आईयां, मैं तुहानू नहीं दे सकिया। फिर गुरु साहब ने उत्थों फिर बाबा बुढ़ा जी नू, भाई गुरदास जी नू तैयार किया, तैयार करके उन्होंने कहा कि गुरु अर्जन देव जी नू लाहौर की धरती तो लैके आंदा जावे। जदों लाहौर की धरती तो लैके आए तो गुरु रामदास जी ने कहा चौथी पत्रिका हुण इस शब्द नू पूरा कर दे, ते उन्होंने फिर आखिरी पंक्ति उचारी, भाग हुआ गुर संत मिलाया, प्रभ अविनाशी कर मह पाया, सेब करी पल चसा ना विछड़ा, सेब करी पल, एक पल भी मेरे तो परमात्मा जिहड़ा ना वो दूर ना होवे। मैं बेनती कर रहा सी, मन्नी की गत कही ना जाए। हुण इस अवस्था का बयान कौन कर सकता जिन्हें गुरु का हुक्म मन्निया। एक होर बेनती, महाराज कहंदे मन्निए सतगुर, उन्होंने मनना है, मन्निए सतगुर परम विचारी, उस सतगुर नू मनो जिहड़ा सतगुर सब तो श्रेष्ठ है। दूसरी बेनती जी, एक ना गुरु ग्रंथ साहब च बचन हुंदा, तुदनो निवन मनन तेरा नौ। कहंदे मैं तेनू निवना तां हां तां मैं तेरा बचन मन्ना, नहीं ते माफ करना। फिर साडे हालात की बन गए। महाराज कहंदे है हृदय कशुद्धे जाए, कोई फायदा नहीं कहंदे मत्था टेकन दा। तुदनो निवन मनन तेरा नौ, जिन्नी सुन के मन्निया तिन्ना निज कर वास। उन्हां दी अवस्था ही महाराज जी कुछ होर हो गई। महाराज कहंदे जिन्हां ने गुरु दा बचन सुनिया ते गुरु दा बचन मन्निया। एक होर बचन है जी गुरु रामदास जी महाराज दा, सेवक सिख पूजन सब आवे, हर गावे ऊतम बाणी। गाविया सुनिया, गाविया सुनिया तिनका थाए पावे, जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर। हुण इस तो बाद कुछ नहीं ना। महाराज ये अर्थ करदे हैं, कहंदे संगत आ रही है गुरु ग्रंथ साहब नूं मिलण वास्ते, लेकिन उन्हां दा कहंदे जिहड़ा गाविया ते सुनिया
परमात्मा दी दरगाह दे विच पवेगा जिन्हें गाउण तो बाद सुनन तो बाद उहदी गल नूं सच करके मन लिया। सो महाराज इत्थे फरमाउंदे मन्ने की गत कही न जाए, जे को कहे, जे कोई मनन वालियां दी गल कर भी लवे ते महाराज कहंदे पिछे पछताए। पिछे वो उन्हां दी गल पूरी संपूर्ण नहीं बयान कर सकता। महाराज कहंदे मन्ने की गत कही न जाए, जे को कहे पिछे पछताए। अगली पंक्ति है जी, कागद कलम न लिखन हार। बाबा नंद सिंह जी नूं संगत दे विचों कोई संगत उठी ते उन्होंने कहा, कहंदे बाबा जी असी जीवन लिखना चाहते हाँ, तुहाडा जीवन लिखना चाहते हो। कहंदे तुसी नहीं लिख सकते। कहंदे तुसी ये लिख सकते हो मेरे कपड़े किद्दां दे, मेरी शक्ल किद्दां दी, मैं स्टेज ते किद्दां बहना, मैं किद्दां बचन करदा, पर भले मानसो जेड़ियां औकड़ां नूं मैं पार करके रब दी प्राप्ति कीती है ओह किद्दां लिख सकदे हो। मेरी गल समझे? किसे महापुरुष दा जीवन बाहरी तौर ते लिखिया जा सकता है, लेकिन उहदे अंदर की चल रहा ये कौन यानी कि लिख सकता है? ये ते ओही लिख सकता है जिहड़ा उस अवस्था दे विच आवे जिन्हों महाराज कहंदे ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी दे अंदर की चल रहा, उन्हें किस तरीके दे नाल ओ रब नूं जुड़दा है, उन्होंने साध संगत जी कोई बयान नहीं कर सकता। महाराज फरमाउंदे कागद कलम, कागज का अखरी अर्थ आप जी नूं पता ही है, कलम का अखरी अर्थ पता ही है, लिखनहार का अखरी अर्थ पता लिखारी। महाराज कहंदे कागद कलम ना लिखन हार, मन्ने का बह करन विचार। बाबा कबीर जी कहंदे कबीरा सात समुंदे मस करो। कहंदे सत समुंदरां दी स्याही बनाई जावे, पूरी सृष्टि दे विच जिन्नी हरियाली है, जिन्नी बनस्पति है, उन्हां दी बनाई जावे कलम, ते सारी धरती नूं बनाया जावे कागज। ठीक है जी। हुण लिखण वास्ते सानू कागज भी चाहिदा, कलम भी चाहिदी है, स्याही भी चाहिदी है, पर बाबा कबीर जी कहंदे ओ परमात्मा इतना बेअंत है कि ओदी सिफत नू संपूर्ण तौर ते कोई भी नहीं लिख सकता। कबीर सात समुंद है मस करूं, कलम करूं बन राय, सगली सगली बसुदा कागद करूं, हर जस लिखन ना जाए। सारी बसुदा, बसुदा दा अखरी अर्थ है धरती, धरती नूं कहंदे मैं कागज बना लवां लेकिन हर जस लिखन ना जाए। ओदा कहंदे जस परमात्मा दा कोई नहीं कहंदे लिख सकदा। महाराज इत्थे फरमाउंदे कागद कलम ना लिखन हार, मन्ने का बह करन विचार। सिर्फ आपां संगत विच बैठ के ओदी विचार हीत कर सकते हैं। जे कहिए भी असी अपनी विचार दे नाल ओनू पूरा पा लिया, नहीं कहते हो सकता। असी एक बचन पढ़ते हैं, पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाउ। ओ परिपूर्ण परमात्मा अपने आप दे विच भी पूरा है, ओदा नामना भी पूरा है, ते माफ करना फिर साडे वर्गे अधूरे किदां उहदे तक पहुंच सकते हैं। असी आम तौर ते कोई प्राणी घर चों चढ़ाई कर जाए तो यही कहने पूरा हो गया, माफ करना कह दिने आ शब्द, पर ढुकदे नहीं हैगे। अधूरे ही असी जम्मे आ, अधूरे ही असी जिंदगी बिताई है, ते अधूरे ही असी इत्थों जा रहे हैं। पूरा प्रभ आराध्या वो परिपूर्ण परमात्मा ही अपने आप दे विच पूरा है। दूसरा पूरा कौन है? पूरे गुर का सुन, गुरु भी तेरा पूरा है।
मेरी गल समझ गए? जां फिर असीं कह दिंदे आ अकाल चलाना कर गया, अकाल दे चरनां विच चल गया। जिहड़ा सारी उम्र गुरद्वारे नहीं आया उहनूं अकाल किदां अपने चरनां च जगह दऊगा बई? महाराज इत्थे फरमाउंदे मन्ने का बह करन विचार, जिन्हां ने गुरु दी गल नूं अपने तुर हिरदे दे विच उन्हों मन लिया है, असी सिर्फ उन्हां दी विचार ही कर सकते हाँ। चलो एक छोटी जी गल है, गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने जदों जपजी साहिब दी कथा कीती ना, कश्मीर दी धरती नूं जा रहे आ पंजाब तो, रस्ते दे विच पड़ा, रस्ते विच थां थां ते उन्हां ने जपजी साहिब दीयां पौड़ियां दी विचार कीती। जदों कश्मीर दी धरती ते जाके जपजी साहिब दी कथा संपूर्ण होई ना, उदों गुरु साहब ने कह दिता सी, गुरु हरगोबिंद साहब कह रहे हैं कि धन धन गुरु नानक देव जी महाराज, तेरी अपनी रचना दी मैं विचार कीती है, पर मैनू नहीं पता कि मैं असल विचार कर सकिया या नहीं कर सकिया। गुरु हरगोबिंद साहब जी ये गल कह रहे हैं, जिन्होंने असी कहने हैं गुरु नानक देव जी महाराज दी ही वो जोत हन, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि हे गुरु नानक देव जी महाराज, जपजी दी विचार ते तू ही जान सकता है, मैं तो एक अपनी मत दे मुताबिक अखरी अर्थ ही कीते हैं। मन्ने का बह करन विचार, जिन्हां ने मन लिया उन्हां दी असी विचार ही कली कर सकते हैं, संगत च बैठ के गलबात कर सकते हैं। अगे महाराज फरमाउंदे ऐसा नाम निरंजन होए, ओदा नाम की है? निरंजन है जी, कालक तो रहत है। निर ते अंजन, अंजन शब्द सुरमे वास्ते आया। सुरमे दा रंग काला हुंदा ते काला रंग बाणी दे विच माया नूं किया गया। एक ते ये पक्ष थोड़ा जिहा तुसीं सुखमनी साहब पढ़दे हो, उह च एक अष्टपदी दे श्लोक आउंदा ज्ञान अंजन, उत्थे जिहड़ा अंजन दा अर्थ है ना वो नैगेटिव नहीं, माया नहीं है, क्योंकि नाल शब्द लगा ज्ञान। उत्थे जिहड़ा सुरमा है वो साडी शोभा वधा रहा है अखां दी। ज्ञान अंजन गुरदिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर किरपा ते संत भेटिया नानक मन। उत्थे अंजन नूं नैगेटिव वाले पासे नहीं लेना। जदों अंजन शब्द दे अगे निर लग जाए ना, निर शब्द, ते फिर समझ लियो ये माया तो माया दी गल इत्थे कर रहे हैं, कालक की गल कर रहे हैं। महाराज कहंदे ऐसा नाम निरंजन, ओ अंजन तो रहत है परमात्मा, ओ निर्लेप है, निर्लेप है, उन्नू कोई भी दोख नहीं है, उत्ते कोई दोष नहीं है, उत्ते कोई दाग नहीं है। मैं बेनती करा, आपां शुरुआत विच गल कीती सी परमात्मा एक चोर दे विच भी है ते परमात्मा साध दे विच भी है। जे परमात्मा चोर विच वसदा ते ओ आप चोर नहीं हो गया। जे परमात्मा साध विच वसदा ते साध विच वसन दे करके ओदी अवस्था उच्ची नहीं होगी, ओ जिस तरह दा है ओ उसे तरह दा है। मैं तुहानू उदाहरण दिना, गुरु तेग बहादुर जी महाराज दा बचन तुसी पढ़दे हो, काहे रेबन खोजन जाई सर्ब निवासी सदा अलेपा। अलेपा दा आखिरी अर्थ की है? कहंदे ओ परमात्मा ऐसा है जिहदे विच भी कहंदे बैठा होया ना, ओ हर एक दे विच बैठा होया ही हर एक तो कहंदे निर्लेप है। कहंदे मेरी गल समझ गए? जे ओ फुल्लां दे विच परमात्मा है, ये नहीं कि फुल्लां दे करके ओदी वासना वध गई है। महाराज कहंदे सदा अलेपा, ओ इन्हां गल्लां तो निर्लेप है। ओ जिस तरह दा है चोर दे विच है, उसे तरह दा कहंदे साध दे विच है। ते गुरु गोबिंद सिंह जी इनू पता की कहंदे आ? महाराज कहंदे आ कि ओ ना ते घटदा है, ओदी तुसी बुराई करो ना, ओने घटना है, ना तुसी ओदी सिफत करो ते ना ओदा कहंदे वाधा हो जाना। कहंदे महाराज इत्थे फरमाउंदे मन्ने काबे करन विचार, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने। जाने नाने दी आवाज है, नन्ने दी आवाज नहीं होनी थे, ना जाने अणे 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 दी आवाज होनी है। जे को मन जाने, जेकर कोई उस नू मन लवे, पर मनना किद्दां है? मन कोई दूसरे मन दा आखरी अर्थ है मन दे विच,
देखो आपां जिथों शुरुआत कीती सी, एक मनना है बाहरी तौर ते। महाराज कहंदे बाहरी तौर ते तेरा मन्निया जिहड़ा वो परमात्मा दी दरगाह दे विच कबूल नहीं होवेगा। जेकर तू मनना है ते उहनूं अपने तुर हिरदे तो मन कि परमात्मा साक्षात है। असीं पढ़दे आ दुकालंग परनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगंग। एक ना आनंदपुर दी धरती ते एक ट्रक ड्राइवर सीगा, अमृत छकिया सी उहने, ते सवेरे उठ के उन्हें की करना, ट्रक नूं सैल्फ मारन तो पहला उन्हें बाणियां पढ़नियां ते आसन ला के बैठ जाना। आपां गल कर रहे हैं सदा अंग संगे, उहनूं मन्नीए कि वह साडे नाल है। ते होया कि एक बिहार दा, चलो आपां उहनूं भईए कहने, वैसे आपां भाई कह लीए, एक बिहार दा आया, बिहारी आया, उन्हें उहनूं नौकरी दी लोड़ सीगी ते उन्हें सरदार नूं बेनती की भी मैनूं नाल नौकरी जिहड़ी है दित्ती जावे। उन्होंने नौकरी देती, उन्होंने भी लोड़ सीगी काम करने वाले दी ट्रक ते। कुछ 2 महीने होए ते वो जिहड़ा बिहारी है वो रोज़ देखना भी सिख ने अमृत वेले उठ के बाणी पढ़नी है, चौंकड़ा ला के बैठना ते दाड़ा प्रकाश दमाला भी सजाया ते उन्होंने इदां लगना जिद्दां कोई देवता बैठा होया। ते उन्हें क्या सरदार जी हमको भी अपने जैसा बना लो। उन्हें क्या सरदार जी हमको भी अपने जैसा बना लो। ते कहंदे ठीक है कोई गल नहीं, कहंदे तू कहंदे अज तो बाद दाढ़ी केस जिहड़े है पहली स्कूल में दाखला भी दाढ़ी केस कटने बंद कर दे। उन्हें दाढ़ी केस कटने बंद करते जी। 2-2.5 महीनों के विच सोहनी दाढ़ी जिहड़ी ना थोड़ी थोड़ी आ गई, यानी कि अच्छा। वो कहंदा भी होर अगे उन्होंने कहा भी हुण तैनूं मैं चल आनंदपुर आपां जाना मैं गेड़े ते, उत्थों आपां तैनूं ऐतवार दा अपना गेड़ा, उत्थे तैनूं आपां खंडे बाटे दी पौल छकाउणी है। खंडे बाटे दी उन्होंने पौल छकाई गई, ठीक है जी। खंडे बाटे दी पौल छकाउण तो बाद उन्हें कहा भी चलो तू इदां कर कि 2 महीने दी मैं तैनूं छुट्टियां दिना ते तू आ अकैडमी है इत्थों तू गतका सिख लै। उन्हें गतका भी सिख लिया जी। चलो जी, हुण वो बिहारी जिहड़ा पूरा सिंह जिहड़ा सी ना वो सज गया ते वो बिहारी अपने पिंड गया। फिर छुट्टी लैके 5-6 महीने साल बाद छुट्टी लैके गया। जदों छुट्टी लैके गया ते उन्हां दे पिंड विच की रिवाज सीगा, जिहड़ियां अमीर घरां दे विच गरीब घरां दीयां बच्चियां काम करन जांदियां सीगियां। ते जदों काम करन जांदियां सी ना ते जिहड़े अमीर ज्यादा सी ना उन्हां बच्चियां दा उन्हां औरतां दा शोषण करदे सी। समझ गए तुसीं मैं की कहना चाहुंदा? तंग करदे सी उन्हां नूं, उन्हां दा शोषण करदे सीगे। वो बिहारी जिहड़ा सिंह सजिया सी ना उन्हें अपना सरी सब लिया ते अपने उन्हें ना जिहड़े उन्हां दा जिहड़ा परिवार सी, जिहड़ी उहदी रहिंदी सी बरादरी, उस बरादरी दे अगे उन्हें ना लाइन खिंचती, कहंदा जिहड़ी कहंदा साडी बरादरी दी बच्ची अमीरां दे घर काम करन जाऊगी मैं ओदियां लत्तां वड़ दूंगा, गला वड़ दूंगा, जो भी है कोई नहीं जाऊगा। 2-3 दिन हो गए जी, वो बच्चियां डर गईयां, मावां डर गईयां, अमीरां दे घर काम कर नहीं जांदियां। हुण अमीरां दीयां जनानियां जिहड़ियां सीगियां वो पुछण आईयां भी तुसीं साडे घर काम कर क्यों नहीं आउंदियां? कहंदे आ साडा कहंदे एक है वो नवां सिंह बन के आया ते वो कहंदा जिहड़ी गई मैं ओदी लत्त वड़ देनी है, गर्दन वड़ देनी, धौन वड़ देनी है। वो बीबियां ने जाके अपने घर वालियां नाल गल कीती, घर वालियां तक जदों गल पहुंची ते उन्हां च गल फैल गई। वो जिहड़ा बिहारी नवां सिंह बनिया सी, एक दिन वो पिपल दे दरख्त ते थल्ले बैठा ते बाणी पढ़ रहा। जदों बाणी पढ़ रहा उधरों 15-20 सिर फिरे मुंडे आए। उन्होंने पता सीगा भी ये हुण साडे घर च काम करन बीबियां नूं नहीं आउण दिंदा। उन्होंने क्या मौका मिलिया, ये कल्ला वै, इनू कहंदे घेर लो। कहंदे उन्होंने महाराज जी 15-20 ने उत्ते हमला किया। उन्हें अपना सरी साहब कढ़िया, गतका उन्हें सिक्ख्या सीगा, उन्हें सरी साहब कढ़िया ते उन्हां दे नाल गतके दे जोर दिखाउण लग पिया। वो बिहारी सिंह दे मन विच गल आई क्यों ना मैं इदां करां भी ये हैगे आ 10-15, अग्गों कोई आउंदा मेरे ते मुकाबला करदा ते उन्नू ते मैं लागे लगन दिंदा, ये ना होवे कोई मेरे पिछों दी आके मुकाबला मेरे सिर ते सट मार जे, पिछों हमला कर जावे। क्यों ना होवे मैं अपनी पिठ जिहड़ी है ना वो मैं दरख्त दे जिहड़ा पिपल है उहदे तने नूं ला के
खड़ा हो जावां ते अग्गों ते मैं किसी नूं नहीं आउण देना, पिछों फिर हमला नहीं होना। साध संगत जी वो मुंडिया ने हमला किया, अग्गों वो लागे ना आउण दवे। जदों वो लागे ना आउण दवे ते वो मुंडे जिहड़े सी ना वो कुछ समय बाद अपने आप ही दौड़ गए। ते 5-7 दिनां बाद वो बिहारी मिलिया, कहंदा तुही ते 15-20 सीगे ते मैं कल्ला सीगा, तुसी कहंदे क्यों दौड़ गए? ते ओ मुंडिया ने कहा, कहंदे तू कल्ला हुंदा ते तैनू असी छिल देना सी, तैनू मार देना सी, पर कहंदा ओ पिपल दे दरखत दे पिछों नीलियां घोड़ियां वाले ते नीलियां बाणियां वाले आए जिन्हां ने साडी पेश नहीं कहंदे जान दित्ती। दुकालंग परनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगंग विभूते। और जेड़ी तुहानू मैं गल सुनाई है ना साध संगत जी, ये अथेंटिकेटेड सच है। मेरे दोस्त है अमेरिका दे विच, उन्होंने सब तो पहला ये गल बंगला साहब की धरती ते स्टेज ते सुनाई सी, अज तो 10-12 साल पहला। गोबिंदपुरी उन्हां दा नाम है। वो हर साल दे विच 1-2 बार आंदे है कथा करने वास्ते। मेरे कहण तो भाव कि तुसी किस तरीके दे नाल गुरु नूं मत्था टेकदे हो। मैं इस लिए बेनती कीती सी, जदों आपां घर तो चलीए ना ते असी जपजी साहिब दीयां 5 पौड़ियां ते चौपाई साहिब करके चलीए। गुरु साडे नाल हर रस्ते ते, हर जगह ते, हर मोड़ ते साडे नाल है। महाराज इत्थे फरमाउंदे, ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोई। दूजे मन का अखरी अर्थ है मन दे विच, ते पहले मन का अखरी अर्थ है जिहड़ा उन्हों मन लवे। जिहड़ा उन्हों फिर मन लवेगा ना मन दे विच, फिर वो उपरली जिहड़ी महाराज ने गल कही ना, मन्ने की गत कही ना जाए, फिर वो ओदी अवस्था नूं भी जान लवेगा। इन्नियां को बेनतियां प्रवान करनियां, होइयां भुल्लां चुकां खिमा करनियां। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।